All right, Supreme Court of India has granted interim bail to the Delhi Chief Minister. We have, in fact, more details emerging at this point in time. The court has now made some observations as well, speaking about the fact that the Delhi Chief Minister suffered for 90 days. Arvind Kejriwal's lawyer Abhishek Manu Singhvi is in the courtroom right now. The ED's lawyer and the Solicitor General Tushar Mehta also in the court. We have given a separate interpretation of Section 19 and Section 45. Discretion of investigating officer. Power of court is different from power of investigating officer. In terms of what was the need for arrest, the court has said this issue can be read to 19. Then we have referred issues to larger bench. Why? What is the policy of arrest? 3 questions framed for larger bench. Mere interrogation doesn't allow arrest is what the court has said. More reactions coming in. Let's take a listen. All right, the court granting bail in the ED excise policy case. Abhishek Manu Singhvi was in court. Listen in once again to the reactions coming in. सर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अंतरिम जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है। जांच एजेंसी और माननीय न्यायालय के बीच का मामला है, वो निर्णय करें। लेकिन ये स्पष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, सूत्रधार है, घोटाला हुआ है। जांच अभी चल रही है, एक बार पूरा निर्णय आने दीजिए। और जिस तरह से हम बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, जैसे शराब घोटाला किया है, ऐसे ही ये बिजली के बिलों का भी घोटाला है। इसमें भी दिल्ली की जनता की जेब काटी गई है, चोरी की गई है, डाका डाला गया है और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को ठगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया सत्यमेव जयते, यानी वो इसको बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। अगर दिल्ली की जनता को लूटना, चोरी करना, उनकी जेब में डाका डालना सत्यमेव जयते हैं तो मनाए, लेकिन दिल्ली की जनता बड़े हुए बिजलियों से त्रस्त है। आप लोग ये जो पूरा मुद्दा है बिजली का है या फिर शराब घोटाले, इसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो? हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही कि उनको जमानत, अंतरिम जमानत। हमको एक बात का जवाब दे दें, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर थे तो शराब नीति से लूट रहे थे, जेल के अंदर है तो बिजली के बिलों से लूट रहे हैं। 37.75% पीपीएससी का क्या मतलब है? क्यों सरचार्ज लगा रहे हैं दिल्ली की जनता पर? अगर एक बिल 1000 रुपए का है तो उस पर 700 रुपए सरचार्ज क्यों देना पड़ रहा है? पेंशन ट्रस्ट, उसके नाम पे 7% टैक्स क्यों देना पड़ा दिल्ली की जनता को? अरे पेंशन बिजली कंपनी वाले देंगे जो कमाई कर रहे हैं, दिल्ली की जनता क्यों दे? तो आम आदमी पार्टी बिजली कंपनी के साथ साठगांठ कर पैसे कमाने का खेल कर रही है, दिल्ली की जनता को लूट रही है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के बहुत बड़ी जीत अपनी मान रही है। बीजेपी इसको मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अंतरिम जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है। माननीय न्यायालय और जांच एजेंसी के बीच का मामला है, निर्णय एक बार पूरा आने दीजिए। शुक्रिया। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ। The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. He's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. Manu continues to be with us. Also, Nalini is with us here in the studios, and I'm also going to go across to my colleague Shreya Chatterjee, tracking the agencies for us. First to you, Shreya, the Enforcement Directorate, in a setback today, has now been told by the court that what is the need for custody to interrogate him.
Undoubtedly, this will have a bearing on the case against him that has been registered by the CBI as well, isn't it? Well, Sneha, Right. what the judgment will actually come in this case, especially after the bench. Here's the challenge of arrest that's been referred to investigating. Remember, so far, getting a bail in the ED matter has been difficult when read with Section 45, because then the difficulty lies because it depends if the prosecutor opposes the bail, the same is not granted. However, in this particular case, we are seeing the challenge of arrest has been moved by Arvind Kejriwal, and now we do understand that, in the judgment that the court has read, they suggest that there are reasons to believe that under Section 19, arrest was required. However, given the incarceration that he's gone through, that's what the court suggests. They have granted bail. We'll have to wait for what the enforcement directorate has to say. We are yet to get an official. Just come back to you in a moment from now. Shreya Chatterjee getting us those details. The BJP has responded. Let's take a listen. इंटरिम बेल मिली है। हमारे साथ बीजेपी एमएलए और वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता है। विजेंद्र जी, बेल मिल गई है दिल्ली सीएम को, जिनके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का संगीन मामला है। अगर आम आदमी पार्टी बेल मिलने को जो है अपनी पीठ थपथपाती है, तो इसका मतलब है आकंठ डूबी हुई, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी किस तरह लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है। पहले तो इस बात का जवाब दो कि शराब नीति वापस क्यों ली थी। भारी भ्रष्टाचार जब पकड़ा गया, सारी चीजें सामने आ गई हैं और 1.5 साल से ज्यादा हो गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं मिल रही है। सत्येंद्र जैन को 2 साल से बेल नहीं मिल रही है। इसका मतलब घपला तो बड़ा हुआ है। अब बेल पर तो पहले भी बाहर आए थे। भ्रष्टाचारी बेल पर आते जाते रहते हैं, लेकिन मामला तो संगीन है और एक मामला तो है नहीं। मामले तो भ्रष्टाचार के कई सारे हैं। हर चीज में भ्रष्टाचार किया है, लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों का विश्वास तोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार करके राजनीतिक संरक्षण लेने की कोशिश की जा रही है, भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब राजनीतिक जवाबों से दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की सरकार डूबता हुआ जहाज है और अब वो दिन दूर नहीं है जब ये सरकार अपने वजन से स्वयं गिरने वाली है, गिर जाएगी, बिखर गई है और ये दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों का वजन अब उनकी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह से अक्षम है। केजरीवाल जी ने कांग्रेस के साथ समझौता किया जो कि पूरा अननेचुरल था, फिर बेल पे बाहर आ गए, पूरा प्रचार भी किया, तब भी 7 सीटें हार गए। यानी कि लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसको जेल जाना ही होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये शुरुआत है, जो उनकी बेगुनाही है, ये उसकी शुरुआत है बेल मिलना। सवाल ये है कि जब मुकदमा चल रहा है, वर्डिक्ट आना बाकी है, सारे सबूत सामने हैं, तो बेल मिलने को अगर कोई अपनी एक बड़ी अचीवमेंट मानता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली का नहीं हो सकता कि कितनी भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली में है कि जो मुख्यमंत्री बेल पर, हालांकि अभी बेल पर बाहर नहीं आए हैं, लेकिन बेल के नाम पर अगर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि सरकार की क्या स्थिति। तौर पर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ बेल मिली है, किसी भी मुकदमे से बरी नहीं हुए हैं। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।